Hello student, standard 11th English medium, चैप्टर नंबर 13। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस। तो द कंप्यूटर्स आर बिकमिंग स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट डे बाय डे. वी आर क्वाइट fascinated by these newer capabilities of the computers. No wonder if we say that sometimes it becomes really difficult for us to know whether the person on the other side of our telephone conversation is a human or a recorded voice in the machine. मीन्स आज के जो ज़माने में कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो क्या है, बहुत स्मार्टर है, ठीक है, डे बाय डे क्या हो रहा है, वो इंटेलिजेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर हम ऐसे दिखते कि अभी हमको कुछ ना कुछ ऐसे सुनाई देता, अभी हम ऐसे फ़ोन की कोई ऐसे अगर किसी का फ़ोन बिजी है या फिर स्विच ऑफ है, तो हमको वहाँ पे क्या सुनने को मिलता है, योर फोन, you are trying to phone, the person is speaking to someone else और the phone is switch off. तो ऐसे जो हमको मैसेजेस से मिलते वो कोई बोलता है या फिर रिकॉर्डेड वॉइस है, ठीक है। तो वो हमको क्या है कि ऐसे समझने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की वजह से. सो वी हैव हर्ड अबाउट ऑटोमेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन वेर इन मशीन्स रिप्लेस एक्टिविटीज दैट were performed manually. For example, instead of filling the cold drinks bottle manually, we now have bottling plants. Machine controlled by programs are used here to fill the bottles of different shapes and size. With the advantages in computer hardware and software technology, one field that has also grown is the field of robotics. The study of robotics is to mainly understand how effectively a robot can work with the use of sensor and actuators in dynamic environments. Today, robots are highly automated mechanical and electronic manipulators controlled by computers. Some of the application area of robotics are intelligent home, military applications, farming and animal husbandry, vehicle industry, hospitals, outer space expedition, disaster management and entertainment. Let us see in brief how a robot is used in these applications. So first हम बात करेंगे इंटेलिजेंट होम. So today automated system can monitor home security and other indoor activities. Doors and windows of a house can be opened automatically based on certain activities or commands. Electronic appliances such as a light, fans, heater, air condition, etc. can be programmed to start, stop or change its setting if between the operation. The technology assists the occupants irrespective of their state of mobility. The technology can be used by person who can move easily within the house or by person who may be bedridden with an equal age. सो इंटेलिजेंट होम के बारे में क्या समझ. अभी क्या है कि होम के अंदर ऐसा होता है कि कभी कभी आप एडवर्टाइज देखते हो तो उसमें होता है कि आप कहीं पे भी बाहर हो, आपको घर पे एसी चालू करना है, तो बाहर से भी क्या कर सकते हो, एसी चालू कर सकते हो. लाइक वो अगर आप ऐसे करो कि 2 क्लैप करो तो आपका फैन ऑन होना चाहिए, या फिर 2 क्लैप करो तो आपका जो डोर होता है घर का वो ओपन होना चाहिए. तो वैसा अगर कोई कमांड हम उसको दे और वो क्या होता है, ऑपरेट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंट हो. Then after military application, surveillance is a key to safeguard from activities happening in and around your surroundings. If you remember the scene from movie Three Idiots, the object that Amir Khan retired was also intended for survival. Airborne robot drones are used for surveillance in today's modern army. An airborne drone is a small flying machine with the shape of a bird or any other object fitted with very high definition camera, sensors and communication as well as networking tools. It is used to collect vast amount of data of any object of interest from an individual to a country. Then after मीन्स यहाँ पे और क्या बताया गया है कि मिलिट्री एप्लीकेशंस मीन्स आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसके अंदर क्या है कि आप उसके अंदर क्या मीन्स उसके अंदर आपने देखा होगा कि
थ्री इडियट्स में क्या किया आमिर खान ने, एक ऐसे वो ड्रोन बनाया था, ठीक है। देन आफ्टर उसके अंदर क्या होता है कि कैमरा और वो ऐसे फिटेड होता है। अभी वो कैमरा, वो जो ड्रोन होता है उसका क्या होता है, बहुत सारा यूज़ होता है, ठीक है। कि ऊपर से आपको कोई ऐसे नीचे का हाई विजन क्या देखना है, कोई भी रिकॉर्डिंग देखना है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ यहाँ पे दूसरा भी आपको मूवी है उड़ी। उड़ी के अंदर भी क्या होता है कि वो जो एक उन्होंने क्या बनाया होता है, एक फ्लाइंग ईगल बनाया होता है, जिसके अंदर उन्होंने क्या फिट किया हुआ होता है, कैमरा, ठीक है। सो उसका यूज़ करके वो क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या हो नहीं हो रहा है, वो वहाँ से पता चल सकता है। एंड आफ्टर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, so agriculture is one such field where lot of robotics have been tried and tested. To name a few, automatic water allocation based on soil conditions, automatic harvesting of crop, milking of cows, etc. मीन्स फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि फार्मिंग के अंदर आप कैसे क्या होता है कि खेत होते हैं, ठीक है। तो खेत के अंदर से क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो भी आपने वहाँ पे भी जो बोया होता है, ठीक है, उनको निकालने के लिए आप ट्रैक्टर का तो वैसा यूज़ करते हो, ठीक है। वैसे ही अगर बाहर कैसे होता है कि जो हम लोग मिल्क गाय का या फिर भैंस का क्या करते हैं, बफेलो का दूध निकालते हैं, तो वहाँ पे मीन्स ऐसे बाहर क्या होता है कि वो मशीन से उसको निकालते हैं, कई जगह पे ऐसा होता है। देन आफ्टर व्हीकल इंडस्ट्री, so vehicle industry use most of the automation tools available. It uses robotics that are able to perform multiple tasks during the car manufacturing process. So यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई गई है, ठीक है, जिसके अंदर जीपीएस फिटेड है और वो क्या करती है कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप चलती है। तो किसने बनाई है, गूगल। सो गूगल हैज सक्सेड इन इंट्रोड्यूसिंग द गूगल ड्राइवरलेस कार, जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होता, वो अकेले क्या होती है, चलती है। So the project supported by Google is developing technology for driverless car. The US state of Nevada passed a law of June 29, 2011 permitting the operation of driverless car in Nevada and California. The Nevada law came into effect on March 1, 2012 and the Nevada Department of Motor Vehicles issued the first license of self-driven car in May 2012. Means ड्राइवरलेस कार है, अभी ड्राइवर होता है तो उसका लाइसेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइवरलेस कार है, उसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है, तो उसका क्या होगा, पर्टिकुलरली उसका एक सेल्फ ड्रिवन लाइसेंस होगा, ठीक है। तो वो कब आया, 2012 में मई में, ठीक है। सो द लाइसेंस वॉज इश्यूड टू अ टोयोटा प्राइस मॉडिफाइड विद गूगल्स एक्सपेरिमेंटल ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक गूगल ड्राइवरलेस कार है। तो यहाँ पे जो ऊपर है वो क्या है कि सेंसर है, रोटेटिंग सेंसर है, जिसके थ्रू उसको क्या पता चलता है, मैप क्या है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। वो 3D मैप वहाँ पे उसको डिस्प्ले करता है। देन आफ्टर यहाँ पे वीडियो कैमरा यहाँ पे आगे है, ठीक है। तो ट्रैफिक में उसको देखने को पता चले कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कार आ रही है नहीं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड और यहाँ पे फ्रंट में भी क्या है, उसको पोजीशन, अगर पार्किंग के ऐसा कुछ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। Then after hospitals, so healthcare is another area where intrusion of robotics is saving lives and assisting people to improve their life. मीन्स हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होता है कि अगर रोबोट्स है, ठीक है, तो रोबोट क्या कर सकते हैं कि अगर कई जगह पे ऐसा बेड हो, ठीक है, या फिर बेड को या फिर किसी को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना है, तो रोबोट क्या कर, अगर हम इंसान भी ऐसे दो हाथ से अगर कोई भी पेशेंट है उसको ऐसे उठाएंगे तो बीच में से वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, वो बैंड हो जाएगा। लेकिन ऐसे रोबोट जब उनको उठाते हैं, ठीक है, तो रोबोट अगर उनको उठाते तो वो स्ट्रेट ही रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर आउटर स्पेस एक्सपेडिशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपने सुना होगा चंद्रयान के बारे में, ठीक है। तो चंद्रयान का चंद्रयान जो यूज़ किया वो कहाँ, वो क्या था, मून मिशन था इंडिया का, ठीक है। तो वो कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने। कब किया, अक्टूबर 2008,
ठीक है, और वहाँ से स्टार्ट किया एंड अगस्त 2009 तक वो चला। एंड देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, चंद्रयान-1 रिवील किया और उसको प्रोजेक्ट जो है वो उसका जो प्रोजेक्ट है वो ओके होके वो मून पे चला गया, ठीक है। देन आफ्टर एंटरटेनमेंट मीन्स यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे क्या है कि 2 रोबोट बनाए गए थे। एक था सोनी ने बनाया था जिसका नाम क्या था, क्यूरियो, ठीक है, और एक होंडा ने बनाया था, ठीक है, उसका नाम था हेयरबो, ठीक है। तो जो क्यूरियो था, ठीक है, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, सोनी ड्रीम रोबोट, ठीक है, और वो क्या कर फ्रीली मूवमेंट कर सकता था, फिर वो गोल्फ बॉल भी खेल सकता था, ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन थे वैसे वो करता था। और होंडा का जो हेयरबो था वो क्या कर सकता था, कोई भी चीज़ हो उसको उठा के रख देता था, ठीक है, और वो ऐसे क्या करता था कि उसके साथ अगर हम कई सारे ऐसे बातचीत करें या फिर बहुत सारी आवाज़ उसके सामने से ला के रख दें कि उसको सुनाए, तो वो क्या करता था, पर्टिकुलरली एक एक जो आवाज़ होती थी वो आवाज़ वो क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूटेड करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यूरियो का एक सैल्यूट है, ठीक है, वो ऐसा इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर ये जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल फोटोग्राफी, वो आपका चैप्टर 30% में कट हो रहा है। इंटरनेट इनेबल टेलीविज़न भी, और हम बात करेंगे अभी ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपने एनर्जी स्टार सुना है, मीन एनर्जी स्टार में कैसे 3 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो जैसे स्टार बहुत ज़्यादा होगी उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कम आएगी, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टार है उन्होंने उन लोगों का प्रोग्राम कब लॉन्च किया, 1992, ठीक है। तो फिर उसका यूज़ कहाँ पे होता है कि अगर हम कंप्यूटर मॉनिटर्स ले, टीवीज़ है, ठीक है, देन आफ्टर रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो एनर्जी स्टार है उसका यूज़ कर सकते हैं। सो उसका यूज़ क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, उसको कम से कम नुकसान हो वो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट्स वाई, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बताया गया है कि एनर्जी स्टार का यूज़ कैसे होता है, ठीक है, और ये मैंने आपको ऐसे क्लास में भी पढ़ाया गया, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम पहले जो बड़े कंप्यूटर्स आते थे, बड़े मॉनिटर्स आते थे, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम अभी क्या करते हैं, एलसीडी और एलईडी लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम सीआरटी मॉनिटर्स नहीं लेते। तो एलसीडी और एलईडी से क्या होता है कि जगह भी कम रहती है और एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो आपका एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीट, एंड आपका जो 11th का जो चैप्टर सिलेबस है वो सिलेबस भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।